بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، ہماری اس ویڈیو کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے پیارے دوستو، حاتم طائی اپنی سخاوت اور دریا دلی کے سبب سارے عرب میں مشہور تھا، لیکن یمن کا بادشاہ خود کو حاتم سے زیادہ سخی سمجھتا تھا۔ وہ بہت رعایا پر اور سخاوت میں مشہور بادشاہ تھا۔ سخاوت کی کثرت کے سبب اس بادشاہ کو بخشش کا بادل کہنا درست ہوگا۔ اس میں ساری خوبیاں تھیں مگر ایک برائی سے وہ خود کو محفوظ نہ رکھ سکا اور وہ چیز تھی حسد۔ حسد آدمی کو کبھی سکون نہیں لینے دیتا۔ چنانچہ یمن کا بادشاہ بھی حسد میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے حسد رکھتا تھا اور سخاوت میں اسے اپنا حریف سمجھتا تھا۔ یہ حسد اتنا بڑا کہ وہ حاتم طائی کو اپنا دشمن سمجھنے لگا، کیونکہ بے پناہ سخاوت کے باوجود اسے حاتم طائی جتنی شہرت حاصل نہ تھی، اور جب بھی کہیں سخاوت کا ذکر ہوتا تو حاتم طائی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ یمن کے بادشاہ کا حاتم طائی سے حسد اتنا بڑھ گیا کہ اگر کوئی اس کے سامنے حاتم کا نام بھی لیتا تو وہ غضبناک ہو جاتا۔ ارے کس بے وقوف کی سخاوت کا ذکر کرتے ہو؟ وہ مجھ سے زیادہ سخاوت نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس نہ سلطنت اور نہ مال و دولت ہو، وہ بھلا کیا سخاوت کرے گا؟ بادشاہ نفرت سے کہتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس بادشاہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا انتظام کیا۔ اس جشن عام میں بادشاہ نے اپنی دریا دلی اور سخاوت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس نے ہر خاص، عام، ضرورت مند اور بے ضرورت مند لوگوں کو طرح طرح سے نوازا اور اس کی جھولیاں بھر دی۔ کسی کو بھی اپنی سخاوت اور بخشش سے محروم نہ رکھا۔ گرچہ یمن کے بادشاہ کی سخاوت محض دکھاوا نہ تھا، بلکہ وہ واقعی نیک دل، سخی اور رعایا کا ہمدرد تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ وہ حاتم طائی سے چڑھتا ہے۔ اس لیے کسی نے جشن کے سماع کے وقت مذاق سے حاتم طائی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس پر کئی دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تائید میں حاتم کی سخاوت کی تعریفیں شروع کر دی۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ حاتم کی تعریف برداشت نہ کر سکا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سمجھ لیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے لوگ مجھے سخی نہیں کہیں گے۔ حاتم کی وجہ سے میری شہرت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ حاتم کے جیتے جی میں کبھی بھی حاتم جتنی شہرت حاصل نہ کر سکوں گا، حالانکہ میں حاتم سے زیادہ مال اور دولت کی سخاوت کرتا ہوں۔ یمن کے اس بادشاہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کی شہرت کی راہ میں حاتم طائی کا وجود دیوار بنا ہوا ہے اور اس دیوار کو گرانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے حاتم طائی کو قتل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے خفیہ طور پر اپنے وفادار سپاہیوں میں سے ایک بڑا اعتماد اور بہادر نوجوان کا انتخاب کیا اور اسے حاتم کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا۔ عادل بادشاہ نے سپاہی سے کہا، اگر تم حاتم طائی کا سر کاٹ کر لے آئے تو میں تمہیں بہت امیر کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی بادشاہ نے سپاہی عادل کو انعام و اکرام کا لالچ دیا اور عادل حاتم طائی کو قتل کرنے کی نیت سے قبیلہ بنی طائی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دن رات سفر کرتا ہوا منزل کے قریب جا پہنچا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھا کہ راستے میں ایک آدمی مل گیا۔ عادل کو وہ شخص بہت مخلص اور مہربان محسوس ہوا۔ اس شخص سے خلوص مربت کی بو آ رہی تھی۔ بظاہر بھی وہ بہت خوبصورت، با اخلاص اور ملنسار دکھائی دیتا تھا۔ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے عادل سے آہستہ لہجے میں پوچھا۔ عادل نے جواب میں کہا، مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، رات اسی بستی میں گزار کر آگے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میرا گھر بستی میں ہی ہے، اس آدمی نے عادل سے کہا۔ عادل نے سوچا کہ اس آدمی سے حاتم کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ عادل کی طرح وہ آدمی بھی نوجوان تھا۔ وہ نوجوان عادل کو مہمان بنا کر بستی میں اپنے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی اس نے عادل کے لیے
अच्छे अच्छे खाने पकवाई और उसकी खातिर मदारत में कोई कसर न छोड़ी। आदिल उसकी खुशखलकी और खिदमत गुजारी से बहुत मुतासिर हुआ। उस नौजवान ने रात भर आदिल की बड़ी खातिर तवज्जो की, उस पर भी माजरत की। ए मेहरबान, घर में जो कुछ था मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। नौजवान ने आदिल से कहा, मुझे निहायत अफसोस है कि मैं आपकी शयानिशान खिदमत नहीं कर सका। एक मेज़बान की हैसियत से मैं आपका हक मेज़बानी अदा नहीं कर सका, जिस पर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आदिल उसकी बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसकी खुश अखलाकी और खातिर तवज्जो की थी। सुबह आदिल को पुरतकल्लुफ़ नाश्ता दिया गया। फिर आदिल ने नौजवान से रवानगी की इजाज़त चाही। नौजवान मेज़बान ने कहा, इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है जनाब, चंद दिन और मेरे गरीब खाने में क़याम फरमाए। उसकी दरख्वास्त सुनकर आदिल बोला, मैं तुम्हारे पास ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, एक बहुत ही ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। क्या आप मुझे इस काम के बारे में बता सकते हैं? नौजवान ने पूछा, नहीं, यह एक राज है, अगर खुल गया तो शायद मैं अपने मकसद में कामयाब न हो सकूँगा। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, अगर आप मुझे इस राज के बारे में बता दें तो हो सकता है मैं भी इसमें आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। आप बेफिक्र होकर बताएं, मैं वादा करता हूँ कि इस राज को अपने सीने में दफन रखूँगा। आदिल उसके हुस्न इखलास को देखा, सोचा कि बताने में कोई हर्ज नहीं है। चुनांचे वह नौजवान मेज़बान से कहने लगा, मैं तुझ जैसे नौजवान और बहादुर आदमी पर भरोसा करते हुए बता रहा हूँ, इसलिए यह राज दिल में रखना। तुम हातिम ताई को तो जानते ही होगे, जो बड़ा सखी है और अपनी सखावत के सबब मशहूर है। मैं यमन के बादशाह का वफादार हूँ। उसकी वजह मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि यमन का बादशाह उसे अपना हरीफ समझता है और उसने मुझे हातिम का सर काट कर लाने का हुक्म दिया है। उम्मीद है कि तुम यह राज किसी को नहीं बताओगे और मुझे हातिम ताई के घर तक पहुँचा दोगे। आदिल की बात सुनकर नौजवान हंस पड़ा। आदिल ने हैरान होकर पूछा, तुम शायद मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? नहीं जनाब, मुझे यकीन है कि आप इस मामले में संजीदा हैं। नौजवान ने तेजी से कहा। फिर उसने अपनी तलवार नीलाम से निकाली और बड़े एहतराम से आदिल को पेश कर दी। आदिल ने हैरत से उसे घूरा, क्या मतलब, तुम मुझे अपनी तलवार क्यों दे रहे हो? तलवार ही नहीं, अपना सर भी आपको दे रहा हूँ जनाब। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सर हाजिर है, काट लें, मगर जल्दी करें। सूरज निकलने से पहले पहले मेरा सर काट कर ले जाएं, क्योंकि फिर मेरे अजीज और घर वाले बेदार हो जाएंगे और आपके लिए दुश्वारियाँ पैदा हो जाएंगी। यह कहकर नौजवान ज़मीन पर उसके आगे बैठ गया और उसने सर झुका लिया। आदिल छटपटा कर रह गया, मगर मुझे तो हातिम ताई का सर चाहिए, मैं ही हातिम ताई हूँ। मेहरबान देर मत करें, मेरा सर काटकर अपने बादशाह के पास ले जाएं। नौजवान बोला। आदिल इस इंकशाफ पर बुरी तरह उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर नौजवान हातिम ताई को देखने लगा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि वह हातिम ताई है या मजाक कर रहा है। हातिम ताई सर झुकाए उसके आगे बैठा रहा। आदिल के दिल पर घूंसा पड़ा और वह सोचने लगा, गजब खुदा का, मैं जिसको कत्ल करने आया हूँ वह इतना बाअखलाक और बुलंद किरदार आदमी है कि उसे कत्ल करना सख्त तरीन गुनाह होगा। ऐसे खुश अखलाक बामुरब्बत और सच्चे आदमी पर तो अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए। आदिल हैरत और निदामत के सबब बदहवास हो गया। उसके हाथ से हातिम की तलवार गिर गई। वो कुर्सी से उठा और जज्बात से मगलूब होकर हातिम ताई के हाथ पांव चूमने लगा। उस पर कुछ ऐसी दीवानगी तारी हुई कि उसने अपनी तलवार नीलाम से निकाल कर फेंक दी और तीर व कमान तोड़ डाले और गुलामों की तरह हाथ बांधकर हातिम के सामने खड़ा हो गया। उसने हातिम से कहा, ऐ नेक दिल नौजवान, तेरी हकीकत मालूम होने के बाद तुम्हें कत्ल करना तो दूर की बात है, अगर मैं तुझे फूल से भी मारूं तो यह भी बहादुरी नहीं बल्कि बुज़दिली और जनाना फेल होगा और दुनिया में मैं सबसे बड़ा गुनहगार आदमी होगा। फिर उसने हातिम से गले मिलकर उसकी पेशानी और आंखों को चूमा और उससे रुखसती की इजाज़त लेकर वापस यमन को चल दिया। जब आदिल यमन के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने आदिल की शक्ल देख कर ही अंदाज़ा लगा लिया कि वह अपनी मुहिम से नाकाम लौटा है और उसे हातिम के कत्ल में कामयाबी नहीं हुई। आदिल सर झुकाकर मुजरिमों की तरह बादशाह के सामने खड़ा हो गया। आदिल, तेरे हाथ खाली क्यों है? तेरे पास हातिम ताई का सर क्यों नहीं है? बदबख्त बादशाह धारा, माफ़ी चाहता हूँ आली जहाँ, मैं मजबूर था। आदिल आहिस्ता से बोला,
अरे कमबख्त, मुझे यह सारा माजरा सुना कि तुम पर क्या आफत आ पड़ी। बादशाह ने गजबनाक होकर कहा, शायद हातिम ताई तुझसे ज़्यादा बहादुर निकला और तू कमज़ोरी और बुज़दिली के सबब उसका मुकाबला नहीं कर सका। जो भी हकीकत है बयान कर। आदिल ने महसूस किया कि उसे बादशाह से कोई ख़तरा नहीं, वह तो हसद की आग में जल रहा है और अपने हरीब का हाल जानने के लिए बेताब है। चुनांचे उसने पूरे शाही आदाब के साथ पहले तो बादशाह की तारीफ़ की, फिर बेखौफ होकर कहने लगा, ऐ होशमंद बादशाह सलामत, मेरी नाकामी पर चाहे तू मुझे कत्ल कर दे, लेकिन हातिम ताई की बातें गौर से सुनना, क्योंकि यह तवज्जो से सुनने के लायक है। हातिम ताई बेहद मशहूर और मारूफ बाहुनर, खूबसूरत और खुश अखलाक नौजवान है। वह बेहद सखी और इंतहा अक्लमंद इंसान है, बहादुरी में मुझसे भरकर है। मैं उसका कातिल बनने गया था, मगर उसने मुझ पर इतने एहसानात किए और इतनी मेहरबानी और मुरब्बत से पेश आया कि मेरी निगाहें झुक गई। उसकी मेहरबानी और एहसानात की बोझ से मेरी कमर झुक गई। आली जहाँ, उसने गोया एहसानात की तलवार से मुझे ही कत्ल कर डाला और मैं हातिम का कातिल नहीं बल्कि हातिम का मकतूल हूँ। फिर भला मैं उसे कैसे कत्ल करता जिसने अपने इखलास शौक़ से मुझे ही कत्ल कर डाला था। आदिल ने हातिम के अखलाक और बुलंद किरदार के वाक़यात तफसील से बयान किए तो बादशाह भी हातिम की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया कि सखावत वाकई हातिम का ही हक है और लोग उसकी सखावत की सही तारीफ़ करते हैं। फिर बादशाह ने आदिल को हस्ब वादा इनाम व इकराम से माला माल कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, सखी वह है जो मुश्किल वक्त में अपनी जान भी सखावत कर दे। मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी अगली आने वाले वीडियो बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।